یدین نہ کرنے کا موقف ہی سب سے زیادہ مضبوط ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ہم حدیث کا ذخیرہ دیکھیں تو حدیث میں کرنے کی حدیثیں بھی موجود ہیں اور نہ کرنے کی حدیثیں بھی موجود ہیں۔ جو ہمیں تانا دیتے ہیں کہ تم رفع یدین کرنے والی حدیثوں کو نہیں مانتے، ہم ان کو جواب میں یہ تانا دے سکتے ہیں کہ تم بھی تو نہیں مانتے نہ کرنے والی حدیثیں۔ تو یہ کوئی حل نہیں ہے کہ آپ کرنے والی حدیثیں دکھا کر سامنے والے کو تانا دیں۔ اگر دونوں طرح کی حدیثیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور سے دونوں طرح کا عمل ثابت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ رفع یدین شروع میں حضور علیہ السلام نے کیا ہے، اسی لیے بخاری مسلم کی حدیثوں میں ہمیں نظر آتا ہے، لیکن بعد میں حضور علیہ السلام نے رفع یدین کو ترک کر دیا ہے۔ ہمارے لیے حضور کی آخری ہاں، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ یہ مولانا حضرت تو یہاں تک صحیح بولی، کہاں تک کہ تو رفع یدین کرنے کی بھی حدیثیں ہیں، نہیں کرنے کے بھی حدیثیں ہیں، تو یہ عمل کر لیتے جاؤ، تو ہاں تک تو ان کی بات صحیح ہے۔ تو اس میں پھر بیچ میں ایک بات کیا بولی انہوں نے، ترک کر دیا۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ترک، رفع یدین ترک کر دیا، یہ کہاں پہ الفاظ ہے، کہاں پہ منائی ثابت ہے؟ یہ حدیثیں انہوں دیتی ہیں، دینے کی کوشش کرتی ہے۔ ہمیں اسے آپ کو حدیثوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کون سے حدیثیں دیتی ہیں کہ دیکھیں گے، ترک ہو گئے سو حدیثیں انہوں دیتی ہیں کہ دیکھیں گے۔ ظاہری زندگی کا عمل ہی فالو کرنا ضروری ہے، لہٰذا ہم اب رفع یدین نہیں کریں گے۔ حدیثیں اگرچہ ہیں لیکن وہ ساری پہلے کا عمل ہی ہمیں کرنے کا ثابت ہے بولے تو انہوں، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک کرتے تھے، اور کو صحابہ کرام کر کو دکھاتے ہیں، سو حدیثوں کیا کرنا تو ہو چکی ہیں۔ اب دیکھیں جن حدیثوں میں رفع یدین نہ کرنے کا ذکر ہے وہ کون سی ہیں، یہ دیکھیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جلیل القدر صحابی ہیں اور فقیہ صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، جن کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے علوم عطا فرمائے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، حضور علیہ السلام نے صرف پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد حضور نے رفع یدین نہیں فرمایا تھا۔ یہ ترمذی میں بھی حدیث ہے اور یہ ابو داؤد شریف میں بھی حدیث ہے۔ اب جو کہتے ہیں کہ تم رفع یدین کرنے والی حدیثیں نہیں مانتے، ہم ان کو یہ حدیث دکھائیں گے کہ تم نہ کرنے والی حدیثیں کیوں نہیں مانتے۔ اور دیکھیں اس حدیث نہ کرنے والی حدیث کر کو اس میں بولتے ہیں نا، اس میں نہ کرنا کر کو بولے تو صرف آپ کو یہ ترمذی کی حدیث جو حدیث نمبر 250/7 حدیث جو یہ دکھا کو انہوں بولتے ہیں، وہاں پہ ذکر نہیں آیا۔ وہاں پہ عبداللہ ابن مسعود وہ بے شک جلیل القدر صحابی ہے، انہوں وہاں پہ کیا بھی ذکر نہیں نماز کا طریقہ۔ میں اس میں کیا بولتے ہیں وہ حدیث میں، ترمذی حدیث جو حدیث نمبر 250/7 میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتاتا ہوں، کر کو صرف رفع یدین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کیے تھے کر کے بتاتے ہیں۔ باقی کا نماز کا پورا نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، نہ تشہد ہے، نہ قیام ہے، کیا بھی ذکر کرے، نہ اتحیات ہے، نہ سلام پھیرنا ہے، نہ درود پڑھنا ہے، نہ اتحیات پڑھنا ہے، کیا بھی ذکر کرے نہیں، وہ حساب سے لے لے تو پورا ترک ہو گیا کر کو بولنا ہمیں یہ جہالت پن ہے۔ صرف رفع یدین ہی کئی کو لینا ہے، کیونکہ ایک بار کریں گر کو بولتے ہیں، باقی کی نماز پوری پڑھتے نہیں جب کو، یعنی نماز کو رفع یدین کرنا ایک ہی جو نماز پوری نماز ہو، ایک بار نماز پڑھتا ہوں اور کو بول کو، یہ ایک بار صرف ہاتھ اٹھانا ہی پوری نماز کیا نہیں۔ اسی لیے اسی حدیث کے شرح میں ترمذی حدیث 250/7 کی شرح میں بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا بولتے ہیں، کامنٹس کرتے ہیں، اس نے شرح میں کامنٹس کرتے ہیں، انہوں بولتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے بولتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی ضعیف کہتے ہیں، دو امامہ اسی حدیث کی شرح میں ضعیف کہتے ہیں یہ حدیث کو۔ یہ حدیث آتی ہے سنن نساء میں حدیث نمبر 1027 کو، اس میں یہ حدیث کو ضعیف کہتے ہیں کون؟ سنن نسائی رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی اس حدیث کو ترمذی کی حدیث کو امام بخاری، امام احمد و امام نسائی ضعیف کر کو بنی۔
ये ज़ईफ़ हदीस को ले लो को, हालांकि इसमें पूरी नमाज का तरीका नहीं है। एक बार रफ़ज़न करते थे कल को बोले तो रफ़ज़न मनाही साबित कहाँ होगी, इसमें रफ़ज़न मनाही साबित नहीं। बात की मिसाल उनकी बात को ले लो तो भी ये एक बार रफ़ज़न वो अमल साबित होता, रफ़ज़न हो नहीं करे सो अमल साबित होता। ठीक है, हमें भी एक बार दो बार रफ़ज़न नहीं कर को नमाज पढ़ते नहीं, तो वो हदीस वो भी हमें अमल कर ले, जैसा इन्होंने पहले बोली रफ़ज़न करने के भी है नहीं करने के भी हैं, करे तो भी जायज़ है नहीं करे तो भी जायज़ है। हाँ तलक सही है, लेकिन मनाही और को बोले नहीं नो मनाही की दलील देना आपको कब देखेंगे देखेंगे। पर इमाम तिरमिजी ने क्या इरशाद फरमाया? इमाम तिरमिजी इरशाद फरमाते हैं कि ये जो ऊपर हदीस है जिसमें लिखा हुआ है हुजूर ने सिर्फ एक मर्तबा हाथ उठाया जब पहली तकबीर हम कह रहे होते हैं, उसके बाद हुजूर ने रफ़ज़न किया ही नहीं है। इमाम तिरमिजी इरशाद फरमाते हैं वबिही यक़ूलु गैरु वाहिदिन मिन अहलिल इल्म मिन अस्हाबिन नबी। इमाम तिरमिजी इरशाद फरमाते हैं ये जो रफ़ज़न ना करने वाली हदीस है इस पर बड़े बड़े सहाबा ने अमल किया है, जो अहले इल्म सहाबा हैं, बड़े बड़े फुक़हा ने अमल किया है। यही हजरत सुफियान सौरी का कौल है और यही अहले कूफा का अमल है। ये इमाम तिरमिजी फरमा रहे कसीर सहाबा हैं जो रफ़ज़न नहीं करते थे, इस हदीस पर अमल करते थे। कसीर फुक़हा हैं, मुहद्दिसीन हैं, अहले कूफा हैं और सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब इतने सारे लोग हैं जो रफ़ज़न ना करने वाले को माज़अल्लाह गाली देता है, उसके खिलाफ ज़बान एतराज़ दराज करता है, उसको कहता है ये मुनकिर हदीस है। उसका एतराज़ सिर्फ इमाम अबू हनीफा पे नहीं जाता, वो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद जो जलीलुल क़द्र सहाबी हैं उनको भी माज़अल्लाह नहीं हज़रत। अस्सलाम वालेकुम सामाईन, मेरा नाम शेख गौस सलफ़ी है, अहले सुन्नतुल जमात अहले हदीस से हूँ। नहीं हज़रत, बातें ऐसी हैं कि नहीं करने वालों को हमें करोनों को बोलते नहीं, कई को कतु उसके भी हदीसा ही तुम्हें बताइए, मैं भी बताता हूँ उसके भी हदीसा ही। नहीं करने वाले चलो नहीं कर लो, तुम्हारी मर्जी हो, तुम्हारा अमल, दूसरे साहबा भी करीम बोलते हैं कर लो, लेकिन करने वालों को तुम लोग बोलते हैं कि ये रफ़ज़न करने वाले बुता साहबा कल को तुम्हारे जैसे लोग बोलते सुनना को करोनों को ये मना हो गया, मनसूख हो गया कर को, तुम्हें दलील लेना सो हमको, हमें बोलते नहीं कि करना तुम्हें कर को, हमें बोलते नहीं करो कि ना को करो, वो तुम्हारा अमल तुम्हारी मर्जी हुआ। हाँ, तो ये दो भी हदीसा आने की वजह से हमें करो न को करो नहीं बोलते हमें, लेकिन तुम लोग बोलती बुत्ता नखले का देती हैं, पहले करते थी, बाद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना कर डालिए, वो मनाही की दलील लो मुझे मुताज बन के सब नो बोलते थी, तुम्हें बोलते थी, ये बात हम बोलो न को क्या तो हमें बोलते नहीं, लेकिन तुम्हें हम ना बोलते उल्टा करो न को, ये क्या वो घोड़े की जुम की तरह हलाते थी, वहाँ भी आगे तुम्हें दी वो हवाला, उसका भी मैं जवाब देता हूँ इंशाल्लाह। आगे सुन बोलो। भला कहने वाला है, उनको भी मुनकिर हदीस कहने वाला है, और बहुत सारे जलीलुल क़द्र सहाबा के बारे में वो ज़बान एतराज़ दराज करता है। इसी तरह देखें सुननुल कुबरा बैकी शरीफ में हजरत अबू बकर और हजरत उमर का अमल मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद इरशाद फरमाते हैं सल्लैतु खल्फन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नबी के पीछे नमाज पढ़ी, व अबी बकर, और मैंने अबू बकर सिद्दीक के पीछे नमाज पढ़ी, और मैंने उमर के पीछे नमाज पढ़ी। फलम यरफउ ऐदीहिम इल्ला इंदा इफ्तिताहिस सलात, तो इन तीनों मुकद्दस हस्तियों ने सिर्फ पहली मर्तबा तकबीर कहते हुए हाथ उठाया, फिर तकबीर के लिए बुलंदी नहीं किया हाथ। ये हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद इरशाद फरमाते हैं कि ना हुजूर ने रफ़ज़न फरमाया, ना हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने दौरे खिलाफत में फरमाया, ना हजरत उमर फारूक ने अपने दौरे खिलाफत में फरमाया। ये सारी हदीसें चीख चीख कर बता रही हैं कि शुरू का अमल नबी का था रफ़ज़न का, लेकिन आखिरी जिंदगी में हुजूर अलैहिस्सलाम ने रफ़ज़न छोड़ दिया, अबू बकर ने छोड़ दिया, उमर ने छोड़ दिया। अब्दुल्ला बिन मसूद का अमल है जिंदगी भर का कि वो रफ़ज़न नहीं करते थे। इसी तरह देखें मौला अली का अमल मौजूद है, मौता इमाम मोहम्मद हदीस की किताब है, उसके अंदर एक सहाबी इरशाद फरमाते हैं कि मैंने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज पढ़ते हुए देखा तो उन्होंने सिर्फ तकबीर ऊला के वक्त हाथ बुलंद फरमाया, उसके बाद कभी भी उन्होंने हाथ बुलंद पूरी नमाज में नहीं फरमाया। बाज़ लोग कहते हैं देखो बुखारी में आ गया, तो भाई सही हदीसें सिर्फ बुखारी में नहीं है। इमाम
तो हजरत आप वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा कराम नहीं करने करे सो टाइम पो के हदीसा बोलते हैं, ठीक है, हमें उससे इतराज़ नहीं है। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा कराम करे सो हदीसा मैं देता हूँ अब तुमना को, तुम्हें भी मानते हैं करेंगे को, तो फिर कई को मना होगा अगर को बोलते हैं, यानी करे सो भी है नहीं करे सो भी है, तो दो को भी अमल हम किया जा सकता है। लेकिन तुम्हें बोलते हैं देखो मना ही करेंगे को, वो हदीस अब तक देनी तुम्हें, मना मनसुख हो गया रफाइदन कर बोली देखो अब तक देने नहीं करे सो वो दिखाते बोलते हैं अब मैं देता हूँ करे सो मैं देता हूँ, तो हालांकि तुम ना भी मालूम कई को तो तुम्हें बोलते हैं करे सो भी है यार को, हालांकि तुम्हें मैं वो देता हूँ। इसका जिक्र आता है सही बुखारी हदीस नंबर 300, सही बुखारी हदीस नंबर 735 से 739 तक, वो सही मुस्लिम हदीस नंबर 809/6। हाँ, वो तिरमिजी का जो हवाला दिए थी देखो तुम्हें हदीस नंबर 250/7 की अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, वो हदीस को ज़ईफ़ कर को बोलने के बाद वो हदीस के दो हदीसा देखो पीछे देखो 250/5 250/6 में रफ़दन करते ही और को तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं सही हदीसा, उसमें कोई इश्काल नहीं। हाँ, तो ये पीछे की दो हदीसा छोड़ा नहीं, सामने की हदीस को ज़ईफ़ बोले सो हदीस को आपको तुम्हें पकड़ को उस हदीस से इस्तेलाल, तो ये गलत है। तो इसमें भी आता है तिरमिज़ी में आता है 250/5 250/6 में, और आपको सही बुखारी हदीस नंबर 730/5 से 730/9 तक को, और इसका जिक्र आता है अबू दाऊद में 720/1 से 730/9 तक को, और प्लस ये अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी साबित है इसमें ये हदीसा में। और इसमें आपको कौन हज़रत आखिरी दौर के सहाबी क्या कि नाम है उनका, वो सहाबी का, वो सहाबी भी आपको बोलते थे मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज देखी हूँ को। और एक सहाबी का जिक्र आता है उसमें आपको सहाबी बोलते थे कि 10 सहाबी को सी हदीस का, तो वो हदीस नंबर वो 700 अबू दाऊद हदीस नंबर 720/6 में क्या बोलते हैं, 720/6 में हदीस नंबर हो अबू दाऊद, उसमें क्या बोलते हैं, तो वो एक साहबी आओ क्या मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ पढ़ के दिखाऊं, मैं बहुत करीब था कर को बोल को नमाज़ पढ़ को दिखाते थी। साहबा करम 10 साहबा करम हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी ही नमाज़ पढ़ते थे कर बोलते हैं, 10 साहबी की गवाही है, यानी ऐसे ही पढ़ते थे। तो इससे क्या साबित होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल होने के बाद साहबी पढ़ को दिखाते हैं, 10 साहबी की गवाही है। तो अब छोड़े सो कहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करे सो कहाँ, आखिरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल होने के बाद ये हदीस बताई जाती है, तो साहबी गवाही देते हैं, तो वो मनसूख कहाँ हुई, मनाही कहाँ हुई, कहाँ से मनाही साबित हुई, यानी दूसरे साहबा करे सो भी है नहीं करे सो भी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे सो भी हदीसा है नहीं करे सो भी हदीसा है, मनाही साबित नहीं। मनाही से हमने कोई इतराज़ है नहीं करना, तुम्हें नहीं करो तुम्हारा, लेकिन मनाही कर को बोले तो तुम्हें दलील देना पड़ेगा। हाँ, अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का हवाला दिए तुम्हें, अली रजी अल्लाह ताला अन्हु नहीं करे सो और तुम्हें दिखे हवाला, वो है नहीं है बात की बात, वो अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से भी साबित है। वही अबू दाऊद हदीस नंबर 760/1 में अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रफ़दन के साथ नमाज पढ़ को दिखा रहे हैं। आप क्या बोलते हैं हजरत तुम्हें? इसी तरह सुनन निसाई में हदीस नंबर 890 में भी है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी ही नमाज पढ़ा करते थे घर को, पूरी नमाज का तरीका दिखाते हैं इसमें। तो इससे सब हदीसा से क्या साबित होता है हम नाम को, तो मनाही काम भी साबित होती नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल के बाद भी साहबा कराम पढ़ते थे, और साहबा कराम नहीं करते सो तुम्हें दिखे, करते सो मैं दिखाई हूँ, हालांकि दो भी साबित है। तुम्हें मनाही को बोलते हैं नहीं, अब वो हदीस के पढ़ाओ देखेंगे इंशाल्लाह। हम बुखारी खुद इरशाद फरमाते हैं, मैंने जो इस किताब में 7000 और कुछ हदीसें लिखी है ना, ये सही हदीसें हैं, लेकिन इसके अलावा ढेरों ढेर सही हदीसें हैं जो मैं नहीं लिख सका हूँ। इसका मतलब बुखारी और मुस्लिम के अलावा भी हदीसें हैं जो बिल्कुल ऑथेंटिक और सही हदीसें हैं। बुखारी और मुस्लिम में कोई चीज नहीं आई इसका मतलब वो इस्लाम में नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। और बाजों नहीं हजरत,
तुम्हें कोई सी भी हदीस दिखाओ, अबू दाऊद में दिखाओ, तिरमिजी में दिखाओ, मुत्तन इमाम मालिक में दिखाओ, अबू दाऊद में दिखाओ, सुनन निसाई में दिखाओ, किस में भी दिखाओ, लेकिन सही हदीसा दिखाओ, ज़ईफ हदीसा दिखाओ न को। क्या हजरत वो सा मनाई साबित है सो, जो रफ़ादन कर नहीं करे सो नहीं, मनाई मना करे सो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई सी हदीस में थी सो सही हदीस दिखाओ। बुखारी के अलावा किताबों में जो हदीस होती है बुखारी से ज्यादा मजबूत होती है, क्योंकि हदीस का दारो मदार होता है चेन पर, रावियों पर। अगर बुखारी में कोई हदीस है जिसके रावी नॉर्मल हैं, सहाबा हैं, लेकिन आम सहाबा हैं, और तिरमिजी में कोई हदीस आ जाती है जिसमें जो रिवायत करने वाले सहाबा हैं वो अबू बकर, उमर, अली, उस्मान हैं, तो इसका दर्जा उस बुखारी की हदीस से बुलंद हो जाएगा। जैसे रावी पावरफुल होंगे हदीस का मकाम उतना बुलंद होगा। तो ये वसवसा डाला जाता है कि बुखारी आ गई ना, अब तिरमिजी कुछ भी कह रही है तो हम नहीं मानेंगे। भाई नहीं, तिरमिजी भी कौल रसूल है और बुखारी भी कौल रसूल है। रफ़ा यदैन करने वाली जो हदीसें हैं उसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिर्फ अमल लिखा हुआ है कि हुजूर रफ़ा यदैन करते थे, सहाबा ने रफ़ा यदैन किया है। किसी एक हदीस में भी ये नहीं लिखा हुआ कि हुजूर ने फरमाया हो मुसलमानों रफ़ा यदैन करो, लेकिन रफ़ा यदैन ना करने की हदीस मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। करने की हदीस नहीं है, करने का हुक्म देने की। इंशाल्लाह चलो हजरत मैं दिखाता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोली हैं। सही बुखारी हदीस नंबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 631 कम अरा आयतमूनी सली, ऐसी नमाज पढ़ो जैसी नमाज मुझे पढ़ते हुए देखो। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है कि रफ़ादैन ना करे सो भी साबित है, रफ़ादैन करे सो भी साबित है। तो मैं दिखा रही हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ादैन के साथ नमाज पढ़ते थे, रफ़ादैन के बिना भी पढ़ते थे। हमें इतराज़ नहीं है उस पर। इतराज़ किस पे है? तो आप बोले है ना मनसूख हो गया, तर्क हो गया, अगर को वो दिखाओ। अब सही मुस्लिम की तुम्हें कोट करिए, उसमें देख मैं दिखाता हूँ क्या है सो उसमें। ये हदीस नहीं है ना करने का, बाकायदा हमारे नबी ने हुक्म दिया है कि रफ़ा यदैन ना करो। और जब अमल और कौल में तजाद हो जाए तो फौकियत हमेशा कौली हदीस को होती है, अमल और कौल में तजाद हो जाए। इमाम आजम अबू हनीफा को क्या रफ़ा यदैन से कोई दुश्मनी थी? क्या वो जानबूझ के छोड़ रहे थे कि यार रफ़ा यदैन इतनी वाज़ेह हदीसों से साबित है, मैं नहीं मानता? कोई बुग़्ज़ तो नहीं था रफ़ा यदैन से उनको। वो तो 80 हिजरी की पैदाइश है। 20 सहाबा को इमाम आजम अबू हनीफा ने खुद अपनी आंखों से नमाज पढ़ते हुए देखा है। तो वो नमाज पढ़ते हुए देख रहे हैं सहाबा को और फिर अपनी किताब में लिख रहे हैं कि भाई रफ़ा यदैन आखिरी जिंदगी का अमल नहीं था, इसलिए मैं जिन सहाबा को देख रहा हूं वो रफ़ा यदैन नहीं कर रहे। कोई दुश्मनी थोड़ी है रफ़ा यदैन से, कोई ऐसा थोड़ी अमल है कि वो जानबूझ के इस अमल को मना कर दे उम्मत के लिए, नहीं। तो हमें इमाम, मैंने आपको जलील कदर साहबियों से साबित कर दिया कि क्या वो वाइल बिन हुजैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी साबित है। जलील कदर साहबी है ये लोग, हाँ। और वाइल बिन हुजैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके बेटे से भी रिवायत करता हुआ मैं हदीसों जो इसे कि मैं हदीसों के नंबर हवाले दिया हूँ उसमें 100 आयातें तुमना को कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल के बाद भी ये साहबी से ये रिवायतें आके है हमको। और आपको आप पर है न का सही मुस्लिम का हवाला दिए। सही मुस्लिम 800, सही मुस्लिम का हवाला 900 कितना दिए सो तुम 960 पर 8 का हवाला दिए तुम्हें। सही मुस्लिम का हवाला, उसमें वो हदीस आपको क्या है, हदीस हो रफ़ा यदैन के बारे में नहीं हजरत हो माशाल्लाह। ये हदीस को आपको कोट कर को रफ़ा यदैन मनाई साबित करना तुम्हें लोग जो समझते हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ, जैसे लोगों को इससे ये हदीस से साबित करने वालों को कौन सी हदीस बोलते हैं? जैसे कि घोड़े के दुम की शरीर घोड़ों की दुमों की तरह हाथे मत हिलाओ नमाज में, हर को बोलते हैं नहीं। सही मुस्लिम की हदीस वो हदीस को ले को रफ़ा यदैन मनाई कर को बोलते इस वाले को क्या भी इल्म नहीं। मैं कहता हूँ मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, मैं उनको क्या भी इल्म नहीं कहता हूँ। मैं कहता मैं कई को कहते इसकी बोलने की वजह क्या है? तो ये हदीस सही मुस्लिम की हदीस नंबर 960 पर 8 में
जो बोलते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सहाबा करम रफ़ा ईदैन करते हैं, तो आप लोग क्यों अपने हाथों को हिला रहे हैं नमाज के? घोड़ों के शरीर घोड़ों की दुमों की तरह क्यों हिलाते हैं? तो ये बात समझने की कोशिश करो। हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे और तुम्हें बोलते हैं। अब उन्होंने करते तो खुद अमल को उन्होंने शरीर घोड़ों की तरह अगर को बदतमीजी से बोल सकती है, उनके अमल को जो माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कैसा बोलती हैं, नहीं बोलते। तो सहाबा करम करते थे सो अमल, वो रफ़ादैन रुकू में जाते सो रुकू में उठते सो खुद नहीं कहा, रफ़ादैन की बात नहीं चलती है। हाँ, सलाम फेरते से वक्त तो नमाज के ख़त्म पे सलाम फेरते टेम्पो को हाथों उठाते थे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह करको। वो अमल देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं, ये अमल करो को शरीर घोड़े की दुमों की तरह उठाओ को तुम्हें इधर उधर करको बोलते हैं। सो रफ़ादैन ऊपर नीचे होता, दाएं बाएं नहीं होता, ये भी नहीं समझ में आता है ये लोगों को मैं क्या भी इल्म नहीं है इनको, खत्म है। इसका जिक्र आता है वो हदीस के 2 हदीसां के आगे, हदीस नंबर 960 पर 9 में 960 पर 970 पर 1 वही हदीस में कोट करको है। देखो तुम्हें 970 पर 1 करको कोट करको बोलते हैं। वही हदीस उन्होंने बोले सो हवाला में, उसमें आपको सलाम फेरने वक्त करको डिटेल्स आगा 970 पर 1 करको आ गया। उतना भी नहीं समझ में आता है तो क्या करको बोल रहा है ये हजरत को, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज़म अबू हनीफा पर एतमाद है। अगर आप डायरेक्ट बुखारी मुस्लिम से पढ़ने जाएंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे। यार एक हदीस नजर आती है किया था, कल तक ये लोग बोलते थे कुरान पढ़ने को गुमराह हो जाती हैं घर को, हाँ, अब बोलते हैं हदीसा पढ़ने को समझ में आता नहीं, कहते हैं क्या क्या बोल रहे हैं ना। हालांकि कुरान में अल्लाह ताला सूरह क़मर सूरह नंबर 50 आयत नंबर 17 20 30 40 में क्या बोले अल्लाह ताला आयत में, हमने इस कुरान को समझने के लिए आसान बना दिया गया। ये लोग कुरान को पढ़ने को तुम्हें समझ में आता नहीं, तुम ना वो कहते हैं। अब आपको हदीसा को भी समझ में आता नहीं बोलते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बात बोलते हैं उन्होंने आपको उनको छोड़ को हदीसा को पकड़ना का, तो वैसा का तो तुम्हें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द खुद उनके कितने के मसले के ऊपर ये बोलिए, क्या बोलिए, इख्तिलाफ करिए उनके शागिर्द खुद, तुम्हें कैसा लेते हैं? फिर सनत कहाँ है? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सी सनत है, इमाम बुखारी इमाम तिरमिज़ी हदीसा लिखे सो आलिमा सी सनत है, तुमना को चैन है, हदीसा लिखे सो उनसे चैन है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के साथ के उनके किताबों से सनत साबित नहीं है, कहा कि थोड़े बहुत हो सकती बन के। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह खुद क्या बोलिए, सही हदीस आ गई तो वो मेरा दिन, मेरी बात उठा को दीवार पर मारो। और क्या मोहम्मद अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक जने रफ़ादैन के कायल नहीं है, बाकी के 3 इमाम रफ़ादैन के कायल है। गौसे पाक अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह रफ़ादैन करते थे। इन लोगों को सब कुछ छोड़ाते हैं तुम्हें कि कहीं को तर्क होगा कि नहीं की वजह से, एक तो दिखा सकते नहीं तर्क होगा को, दूसरा को इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सबसे अफजल कर को तुम्हें उनके मुकल्लिद बन को तुम्हें चलते हैं, मुकल्लिदान तुम्हें चलते हैं। चलो उसका फैसला आखिरत में होगा उताश बन के, लेकिन तर्क हो गया अगर को बोले तो उसका सबूत देना सोचो तुम्हें, नहीं का तो उसका अंजाम को पकड़े जाती हैं अल्लाह के पास। नबी के ऊपर जानते बूझते झूठ बांधे तो उसका ठिकाना जहन्नम है। हदीस नंबर 106 109 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झूठ बांधने वाला जहन्नम कर को बोलते हैं। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ादैन तर्क करी मना करी को बोलते हैं, तुम लोग दिखा सकते नहीं, जब तक तुम्हें दिखाते नहीं तुम्हें झूठ बांधे नमाज उनके ऊपर नबी के ऊपर दिखाओ, तुम्हें दिखाओ को रफ़ादैन साबित होगा रुकू में जाते वक्त, रुकू में से उठते वक्त और तीसरी रकात की आगाज़ में, ना के सलाम फेरते वक्त साबित करो, नहीं का तो तुम्हें झूठे साबित हो जाती, नबी के ऊपर झूठ बांधने वाले साबित हो जाती। इंशाअल्लाह मैं 4 हदीसें छोड़ के देखता हूं तो नहीं किया था। तो आज का कोई बेवकूफ इंसान, इंजीनियर का फॉलोवर, वो अगर हदीसों से नतीजा निकालेगा कंफर्म गलती करेगा। तो हमें ऐसे इमाम को फॉलो इसकी बात उसकी बात नहीं सुनना हजरत, इंजीनियर की बात भी नहीं सुनना, बात सुनना
इंजीनियर की भी सुनना, डॉक्टर की भी सुनना, कंपाउंडर की भी सुनना, रोड पे जाते वाले की भी सुनना, रिक्शा वाले की भी सुनना, जब तक कुरान हदीस के मुताबिक हो तो, नहीं तो किसी की भी सुनना नहीं। अतीउल्लाह व अती रसूल, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60, कई जगह है, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3, सूरह बकरा सूरह नंबर 2, सूरह कई जगह है अतीउल्लाह व अती रसूल, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानो। और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 55 में आता है अतीउल्लाह व अती रसूल, और अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की बात मानो, और उनके बाद तुम में से बड़े लोगों की बात मानो। हाँ, फिर यहाँ तक रुकी नहीं बात, हो आयत हो नीचे है, आयत क्या बोल रही है, अगर तुम में तनाज़ा आ गया तो रुजू करो अल्लाह की तरफ और रसूल की तरफ, ना कि उनके तरफ। तो हमें क्या करना है, हमें में तनाज़ा आ गया तो क्या करना है, हमें अल्लाह रसूल की बात सुनना। तो बोलने का मकसद है क्या रहेगा, तो अभी तुम्हारा वीडियो है लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है, को मैं बात हाँ एंड करता हूँ। इमाम बुखारी की हो, क्या हो, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की हो, किसी की भी हो, सनद सही है तो बात को ले लेना, सनद नहीं तो उसकी बात को निकाल को बाजू रख डालना, एहतराम से निकाल को बाजू रख डालना, बल्कि उनको बुरा भरा किसी को भी हमें इमामा को बोलने के काबिल नहीं हमें। रही रफ़ैज़न की बात, तो रफ़ैज़न तुम लोग नहीं करते ही करो न को, लेकिन करते सवालों को ये मत करो कहो कि तर्क हो गया, मनाही हो गई, कर को ऐसा झूठ बानो न को नबी के पुरो, ऐसा बांधने का है तो तुम्हें रफ़ैज़न मनाही की ये दलील लो। रफ़ै ना करने का जिक्र आया उस हदीसां दोनों को, रफ़ैज़न नहीं करते थे साहबा करम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर को, वो हदीसां दोनों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोली कि रफ़ैज़न मैं पहले करता था, अब मना, अब बोलता हूँ तुम ना को मत करो कर को। जैसा को पहले ख़बरस्तान को जाने से मना किए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोली बाद में पहले मैं मना किया था ख़बरस्तानों को जाने से, अब इजाज़त देता हूँ कि जाओ ताकि तुमको इबरत हासिल हो, आखिरत की याद आया कर को। ऐसा पहले मैं रफ़ैज़न करता था, अब तुम ना को बोलता हूँ कि मना रफ़ैज़न मत करो कर को। ऐसी हदीस लाके खुली हरफी साफ़ सुथरी हदीस, सही हदीस लाके दिखाने का तो दिखाओ, नहीं का तो अल्लाह के वास्ते बोलो न को। तुम्हारा अमल तुम्हारे साथ, हमारा अमल हमारे साथ, उताज बन के करते इस वाले को रोको न को। तुम्हारी गाड़ी कैसी भी चलती है कि चलाओ, हवा नहीं तो भी चलती, टायर पंचर है तो भी चलती, क्या हारन नहीं तो भी चलती तुम्हारी गाड़ी, टाप नहीं तो भी चलती, हेलमेट नहीं तो भी चलती तुम्हारी गाड़ी। लेकिन हमारी गाड़ी में हवा फुल रख ले को, टायरा फुल में हवा रख ले को, पंचर नहीं सरका, हारन बजा ले को, सेफ गए तो सेफ्टी है थी क्या हजरत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।